डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Good evening. Myself, Dr. Naishal Rawal, would like to welcome you all at Chaitanya Studio, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. In the last sessions, we had covered about the introduction of the business environment, which was dealing with the various types of environment that deals with the micro and macro environment. We were also more focused on the environmental aspects or business environment, how your business is being affected with the help of micro and macro environment. It was also covering the various policies. Along with this, we had talked about the fiscal policy, monetary policy, industrial policies we were talking about. We were also talking about the some cultural factors which were affecting your business. We had also talked about the some social factors which affects your business. We had talked about the corporate social responsibilities. So finally, in today's sessions, we will be talking about, we will be covering the topics related to the growth, economic growth, problems of economic growth. So till now we had done with the unit 1, unit 2. Right now we are focusing more on the block 1, that is the introduction to the business environment, and the unit 3, that is the problems of economic growth. So let us see with the PowerPoint presentations. The unit 3 title is problems of growth. What are the various problems? And under the block 1, that is the introduction of the business environment. Once again, I would like to welcome you all. So these are the today's learning objective and the introductions. Problems of growth. How does these things affect your business environment? So the first one is the concept of unemployment, concept of poverty. The third one is the regional imbalance. Fourth one is the social justice. And the fifth one, the very important topic for today's session as well as for your business, whether you are talking about the micro level or maybe you are talking about the macro level, that is the inflation. Sudden rise in price is known as inflation. महंगाई के बारे में हम वो टॉपिक को कवर करते रहेंगे. ठीक है. अब देखा जाए तो कोई भी बिजनेस रहता है तो उसमें दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं. एक होता है प्रॉफिट. प्रॉफिट के साथ साथ आपका बिजनेस कैसे ग्रो करता है, ग्रोथ. ठीक है. सपोज से फॉर एग्जांपल 2015 में आपने कोई बिजनेस शुरू किया और उसकी इनकम थी मान लो कि भाई 50 लाख रुपया तक का. ठीक है. अब 2015 से लेकर 2023 तक की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले 5 और 3 8 साल हुआ. अभी आपका इनकम है सपोज मान लो कि 3.5 करोड़ रुपया पूरे साल का टर्नओवर जो हम कहते हैं वो. ठीक है. तो अपना बिजनेस ऐसे ग्रो होते जा रहा है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कोई मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज की तरफ कुछ होता है, जैसे कोविड-19 हुआ था तो वहाँ पर बिजनेस को अफेक्ट किया गया था. ठीक है. अब बिजनेस इज अफेक्टिंग विल लीड्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट. सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन लीड्स to the lesser productions and many other factors which are not in our control. ठीक है. जो लॉकडाउन लगा था तो वो किसी बिजनेस के हाथ में नहीं था. That was in the hand of the government. So we were talking about the various policies, right? Currently the interest rate is increasing. पिछले कुछ महीनों से इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली बढ़ते गया था. ठीक है. वो कौन सी पॉलिसीज में अंडर आएगा तो कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज में आता है, आरबीआई के तहत आता है वो. ठीक है. सो growth is considered as a main objective of any business, whether you are talking about the individual or whether you are talking about the country, right? Unemployment serve as an vital issues. जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स भी होती है, पॉवर्टीज भी होता है. एंड हाउ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी विल अफेक्ट योर इकोनॉमिक ग्रोथ. 10% पर ग्रो करना है, 9% पर करना है, 8% पे करना है, 6.5 चल रहा था, अभी 5.5 का टारगेट करना किया हुआ था.
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, अगले साल तक यानी 2024 तक अपना इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना होगा, वो टारगेट हम कभी अचीव करेंगे या नहीं करेंगे. एवरीथिंग इज बीइंग डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट. एक चीज़ और यहाँ पर अफेक्ट करती है आपके बिजनेस को, दैट इज़ द एनवायरमेंटल इश्यूज. एनवायरमेंट, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वो सारी बातें अपने नेक्स्ट यूनिट में किए जाएंगे, ठीक है. सो नॉलेज रिलेटेड टू द रीजनल इम्बैलेंस, राइट. पूरे भारत में जितने भी स्टेट्स है, सारे स्टेट्स एक जैसे डेवलप नहीं है, सारे स्टेट्स एक जैसे अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग नहीं है. कुछ स्टेट्स आपके डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है, कुछ आज भी अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में उसका गिनती होता है. तो रीजन वाइज देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंसेस होता है. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशंस रहता है, बहुत तेज़ी से अपना इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहा था. ऑन सोशल जस्टिस इज बीइंग हाईलाइटेड. Idea about the inflations. Inflation means the general rise in price, sudden rise in price, constant rise in price. लेकिन उसकी impact फिक्स्ड इनकम ग्रुप पीपल है वहाँ पर कितनी रहेगी, कैसे रहेगी, ठीक है. टॉकिंग अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, मेन इश्यूज है, मेन प्रॉब्लम है, कोई भी बिजनेस हो या इकोनॉमी हो, ठीक है. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, but to fulfill that wants resources are limited. Scarcity रहती है गुड्स एंड सर्विस का, तो उसमें से कैसे बाहर निकलना है, कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नीड्स कैसे फुलफिल होता है. तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट. उसका मतलब जितने भी रिसोर्स तुम्हारे पास अवेलेबल है वो तुमको यूज़ करने का. एंड इफ़ यू आर यूजिंग द फुल रिसोर्सेस, that means the production will also increases. Let us see the various types of unemployment. कितनी प्रकार की आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है. तो सबसे पहला है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. आइए देखते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहता है. तो कि भाई वो एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि जो बंदा अपना खुद का पहला जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, that is called frictional. It is required as it achieve its potential level of output. कंट्री में अगर प्रोडक्शंस का आउटपुट बढ़ाना है तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए उसको दूर करने के लिए. पढ़ाई ख़त्म करके जैसे ही जॉब तैयार मिलती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है कभी, ठीक है, कैंपस इंटरव्यूज़ होता है. तो अगर ये सारी बातें करने से, ये सारी चीज़ें करने से अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है. Increasing employment will leads to increasing productivity. Increasing productivity will leads to increase in income. Increasing income will lead to the increase in standard of living. And standard of living will increase is lead to economic growth. ठीक है, लोगों का जीवन धोरण अगर सुधरता जाएगा, इट्स अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है तुम्हारे वहाँ पर, राइट. तो उसके लिए क्या करना है, तो कि भाई प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी. प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे, तो कि भाई लोगों, जितनी पॉपुलेशन है उसमें से लोगों को जॉब में इंक्लूड करो, बिजनेस में इंक्लूड करो. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट टोटल स्पेंडिंग्स, ठीक से खर्च नहीं कर रहे हो इसीलिए हो रहा है. एंड सच सिचुएशन अराइजेस एट द टाइम ऑफ अ रिसेशन. ठीक. So if there is a lesser aggregate demand, firm respond by the producing less. मैक्रो लेवल की मैं अगर बात करता हूँ, अगर पूरे देश की, कंट्री की अगर हम पूरी बात करें, तो अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है ऑन एन एवरेज, तो उसका प्रोडक्शंस भी कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में उसका डिमांड है ही नहीं. एंड इट विल रिजल्ट इन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो रिड्यूस. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, skills are not demanded by the employers due to insufficient skill. इसे कहते हैं समय के साथ अगर चेंज नहीं किया, तुम्हारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं किया, यू विल बी आउटडेटेड. कई सारे बिजनेस है ऐसे, जैसे कि फियाट, एम्बेसडर, वी वर टॉकिंग ऑल्सो अबाउट, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द ल्यूना, काइनेटिक. मार्केट में कहीं पर भी नहीं है. नोकिया का फ़ोन आता था पहले,
कहीं नहीं है मार्केट में। बीच में किसी एक कंपनी ने ट्राई किया था उसको टेक ओवर करने के लिए, थोड़ा बहुत चला था मार्केट में, बट वापस से वो प्रोडक्ट फेल होता गया। सो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो कि स्किल्स विच आर नॉट डिमांडेड बाय द एम्प्लॉयर्स। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट अपडेटेड टू योर नॉलेज, टू योर स्किल्स। मशीनरीज नया नया आता जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज होता है, हम अगर सीखते नहीं उसको या तो अपडेट नहीं करते तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की अगर अपडेट नहीं करते, टेलीफोन है, टेलीविजन है, तो वो प्रोडक्ट मार्केट से आउटडेटेड हो जाएगी और उसके पार्ट्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। बट दे कैन स्टिल कंट्रीब्यूट इन द लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसे नहीं है कि उन लोगों को जिसका स्किल अपडेट ना हो उसको नौकरी से निकाल ही देने का। दे कैन कंट्रीब्यूट विद द लेवल ऑफ आउटपुट विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है। आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉवर्टी। Now what is this poverty? A simple definitions. If a person is not able to meet or fulfill with their basic needs due to mainly economic constraints, right? अब basic needs कौन सी है? Water, adequate food, shelter, health and education. These are the 5 basic needs. अगर तुम नहीं कर पाते हो, that means you are the poverty, right? Poor people. But poverty impact will be हायर ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उसके लिए करना क्या होगा, क्योंकि भाई गवर्नमेंट हैज टू फोकस मोर ऑन द पॉलिसीज एंड शुड गिव द एफर्ट्स ऑन दोज पॉलिसीज विच आर गोइंग टू हेल्प टू रिमूव द पॉवर्टी। इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो पॉवर्टी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, बट इट ऑल्सो नीड्स द क्वालिटेटिव नेचर so that it can sustain over a period of time। समय के साथ साथ वो सस्टेन कर पाएगा। ऐसा नहीं कि भी पॉलिसी लेकर आए उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ठीक है। एंश्योरिंग द फेयर इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस होना चाहिए। मीटिंग द ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशंस एस्पिरेंट्स होनी चाहिए, राइट। सो पॉवर्टी आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है। अपने कंट्री में हम कभी कैलोरी को मेजर करने के लिए पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कैलोरी को हम हेल्प लेते हैं, उसका साथ में अपने कभी इनकम की भी बात करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस के तौर पर। ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए पॉवर्टी का न होना ज़रूरी है और उसके लिए गवर्नमेंट हैज़ टू फोकस ऑन द वेरियस पॉलिसीज एज वेल एज द कॉन्स्टेंट एफर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। हाउ कैन वन रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी? बिजनेस की अगर बात करें तो ठीक है, बिजनेस इज अ फंडामेंटल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज एंड द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉवर्टी एलिवेशंस। सो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो कि इन्वेस्टमेंट्स लाना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लाती है, प्राइवेट कंपनीज़ को इंडिया में इनवाइट करती है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, बट कभी क्या होता है तो कि अब काम किसको मिलेगा, तो कि अपने इंडियंस को ही काम मिलेगा। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैकडोनल्ड्स, इट्स अ फॉरेन कंपनी। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए वोडाफोन, यहाँ पर उसका बिजनेस सेटअप किया है, वो यहाँ पर अपना बिजनेस चलाते भी है, बट काम कौन कर रहा है, तो कि वी इंडियंस आर वर्किंग। एंड सच सिनेरियो कैन बी सीन मेजॉरिटी इन द डेवलपिंग नेशंस। जॉब क्रिएशंस कैन बी डन मोर इन द प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, सो दैट दे कैन जनरेट द रेवेन्यू, द कंपनी और अ बिजनेस कैन जनरेट द रेवेन्यू, एंड जनरेटेड रेवेन्यू विल बी कंट्रीब्यूटेड इन द government of India's as well as the public finances there. Government will use those money in the public welfare schemes. Many developing economy have one-sided economic structure, but it is therefore important for economy because they are more diversified. Now let us talk about the regional imbalance. What are imbalances which is not uniform? भारत के इतिहास में मैं बात करूँ तो कि जितना भी स्टेट है इतिहास में कभी भी वो यूनिफॉर्मिटी रही नहीं है। कुछ स्टेट्स ज़्यादा डेवलप्ड है, कुछ स्टेट्स बहुत ही कम डेवलप्ड है। इंटर स्टेट इनइक्वालिटीज़ रहती है। ठीक है, these states has not been adequately addressed well, so it leads to the regional disparities.
अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है. सो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन रोल है वो प्रमोटिंग द बैलेंस डेवलपमेंट ग्रोथ, suitable macroeconomic policies framework. Now, before going to the next slide, I would just like to highlight on this role of the government. So, there are federal structure in a country. Three types of the government exist: central, state, and the local. ठीक है. तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करेगी उसके ऊपर. सेंट्रल विल डिवाइड द रिसोर्सेज टू द स्टेट गवर्नमेंट and state government will divide the resources to the local government. Local government are of two types. One is related to the rural area and another one is the urban area. अर्बन में जाएंगे तो आपको म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशंस देखने को मिलेगी और रूरल में जाएंगे तो आपको नगर पालिका, जिला पंचायत, वो सब देखने को मिलेगा. तो यदि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करता है और अच्छे तरीके से उसको एड्रेस देता है तो डेफिनेटली इम्बैलेंस जो है वो कम होता जाएगा. ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेमवर्क. और रीजनल इम्बैलेंस के ऊपर जब गवर्नमेंट के फोकस की बात आती है तो 10th 5-year प्लान में फोकस किया गया था इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज. इट वाज आल्सो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच टू प्रोवाइड द एडिशनल फंड, सम एक्स्ट्रा फंड स्पेशली फॉर द बैकवर्ड रीजन. जो स्टेट कम डेवलप था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिसोर्स के तौर पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे थे. ठीक है. सो आफ्टर रीजनल इम्बैलेंस लेट अस टॉक अबाउट द सोशल जस्टिस, इनजस्टिस. इट रिप्रेजेंट्स द इंक्लूसिव ग्रोथ, fair play for the every section of the society with the focus more on the protecting the weaker group of the populations. We had talked about the high density of the populations. We had talked about the high populated nation in our world. So government ने social injustice को दूर करने के लिए क्या क्या किया था, तो कि भाई उन्होंने एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फोकस करने की बात की थी, खासतौर से वीकर सेक्शन और ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशंस. व्हाट इज सोशल इनजस्टिस? तो कि इट इज़ एन एसेंस, इट्स इज द कल्यूमिनेशंस ऑफ अ नंबर ऑफ ओवर इचिंग themes and values with the practice of the general goods for all of in the society. The federal government is starting to the pressure local government to let marginalized population remains on their land or to find new land for them to work and live. One of the new policy in the inclusions of the right of housing for each poor and the landless family. This is what we got from the government support. Let us talk about the inflation. So your business is affected by the poverty, your business is affected by the unemployment, social injustice, culture factors, education sector, social factors. ठीक है. बट एक मेन चीज़ ये भी आती है यहाँ पर कि इन्फ्लेशन से भी तुम्हारा बिजनेस को बहुत तगड़ा अफेक्ट करता है. What is inflation? Sudden rise in price is called inflation. General rise in price is called inflation. Constant rise in price is called inflation. Right? तीनों के आंसर सेम है. किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपेयर करते हो, कोई एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो, या तो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम देने के लिए तुम प्रिपेयर करते हो और इन्फ्लेशन का टॉपिक है उसके अंदर, और ये पूछा गया है इन्फ्लेशन मीन्स ब्लैंक, ऑप्शंस दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो अगर जनरल राइज इन प्राइस, सडन राइज इन प्राइस, कांस्टेंट राइज इन प्राइस होगा एंड योर आंसर विल बी ऑल ऑफ अबव. ठीक है. प्राइस राइज को भी हम इन्फ्लेशन कहते हैं. भाव वधारो, मोंगवारी, महंगाई जिसको कहना है. राइट. सो इन्फ्लेशन अफेक्ट इन टू मेजर ग्रुप्स. वन इज रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट. इसमें क्या होता है कि भाई डिफरेंट ग्रुप अफेक्ट्स द डिफरेंट पीपल डिफरेंटली. सेविंग विल ऑल्सो अफेक्टेड. बचत, ठीक है, बैंक में तुमने फिक्स डिपॉजिट पे कुछ अमाउंट रखी हुई है, उसको भी असर करेगा. क्रेडिटर्स विल नॉट बी हैप्पी. डेप्टर्स को मजा हो जाएगा, दे विल बी हैप्पी. तुमने अगर पैसे बोरो किए हैं तो इन्फ्लेशन इज नेवर अ गुड, लेकिन पैसे किसी को दिया है ब्याज पे तो वो सही है. रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट जिसको हम कहते हैं. आउटपुट इफेक्ट, हाउ मच प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी.
ठीक है, 3 सेक्टर्स अपनी इकोनॉमी में चलते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर। ये तीनों के जो सेक्टर से तुमको आउटपुट निकल कर आता है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन है तो वो इन 3 पर कैसे भारी पड़ता है। द आउटपुट इफेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड पुल क्या करता है कि हैज़ अ स्टिमुलस इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी रिजल्टिंग इन द ग्रेटर आउटपुट। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कॉस्ट पुश क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट रिजल्ट विद द लेसर आउटपुट। आज किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ता भी है, दैट इज द कॉस्ट पुश, ठीक है। सो इन्फ्लेशन मीन्स जनरल राइज इन प्राइस। ये इफेक्ट कैसे करता है, सबसे पहले अपने सेविंग पर इफेक्ट करेगा। क्रेडिटर्स विल नॉट बी हैप्पी बट डेटर्स विल बी हेल्प्ड थ्रू द इन्फ्लेशन। वन मोर important topic related to the business environment, that is the parallel economy. इसे कहते हैं शेडो इकोनॉमी, इसे कहते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी, इसे कहते हैं ब्लैक इकोनॉमी, इसे कहते हैं अनकाउंटेड इकोनॉमी, अनसैंक्शनड इकोनॉमी, इलीगल इकोनॉमी, राइट। तो शेडो इकोनॉमी क्या कहती है, इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या कहता है, पैरेलल इकोनॉमी क्या कहता है, तो कि it includes not only illegal activities but also unreported income from the production of legal goods and services, maybe from the barter system or maybe from the monetary transactions. एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसे ट्रांजेक्शन्स कि जहाँ पर कैश रिकॉर्ड्स कहीं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कहीं पर भी होता नहीं है, ठीक है। पैरेलल इकोनॉमी cannot the functionings of an unsanctioned sector in the economy whose objective run the parallel rather in contradiction with the aroused social objectives. So अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो पैसा पहुंचेगा ही नहीं, राइट, तो वो कहीं ना कहीं काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दे विल नॉट बी हैविंग द रिसोर्सेस एज दे वांट। एंड पैरेलल इकोनॉमी को हम ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, अनकाउंटेड इकोनॉमी कहते हैं, इलीगल इकोनॉमी कहते हैं, अनसैंक्शनड इकोनॉमी कहते हैं। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है कौन सा, तो कि 2016 8 नवंबर को जो नोटबंदी की गई थी वो पैरेलल इकोनॉमी को रोकने के लिए की गई थी, ठीक है। जो काउंटरफीट नोट्स चल रहे थे, करेंसी नोट्स, उसको बंद करने के लिए भी की गई थी, डुप्लीकेट करेंसीज जो चल रही थी। बॉर्डर पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ होता था उसको बंद करने के लिए किया था। दिस आर दी फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट। ज़्यादातर अपने वहाँ पर उसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो हम कैश डील में मानते थे, कैश ट्रांजेक्शन्स करते थे। कैश ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, तो कि बैंक में वो रिकॉर्ड होता ही नहीं है। आपने कैश दिया, मैंने कैश किसी और को दिया, बस निकल गए, ख़त्म। बार्टर सिस्टम हो या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हो, डिपेंड्स। After the demonetizations of 2016, you will find lots of people where it started using the credit card, debit card. Lots of people started using the online transactions, Google Pay, Phone Pay, Beam applications. Varieties of payment applications are there nowadays, easily available. So, from inflation, from poverty, from unemployment, from parallel economy, let us move with the environmental problem affecting the growth of the business. तुम्हारे बिजनेस को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैसे अफेक्ट करता है। बिजनेस में सिर्फ पैसे इन्वॉल्व नहीं होते, वहाँ पर सोशल नीड्स होती है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स फॉर द पीपल, और यू कैन यूज द कंज्यूमर वर्ड। बिजनेस एक्टिविटी हैव ऑल्सो बिकम द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस एज वेल, राइट। किसी बिजनेस प्लांट को तुमको कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पर, तो जो ज़मीन है उसके ऊपर जो पेड़ पौधे लगे हैं उसको तुमको डिस्ट्रक्ट करना होगा। कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ है जो अपने बिजनेस को वेल इफेक्ट करता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस वेराइटीज़ ऑफ द रॉ मटीरियल्स, वी कैन टॉक अबाउट द वाटर ऑल्सो। द environmental issues affect a business because law require business to change equipment, procedure to meet with the imposed standard which cost the business money.
Nowadays, we might find some business enterprise or some enterprise or some companies are going for the plantations just to protect the environmental through the law. ट्री प्लांटेशंस की मैं बात करूँ तो, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर फैक्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो फैक्ट्री में कितना नॉइज़ पॉल्यूशंस होता है, साथ ही साथ अपना वो जब बॉइलिंग वगैरह सब यूज़ करता है तो धुआं निकल के आता है, अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को वो अफेक्ट करता है, और वो जो काले धुएँ होते हैं वो अपने प्लांटेशंस को अफेक्ट करेगा, प्लांट्स को बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल दूँ तो बिज़नेस को फ़िलहाल अभी अपने साइड पे रखे तो दिवाली की रात को जो हम फायर क्रैकर्स इस्तेमाल करते हैं, राइट, और अगर आपके गार्डन्स, आपके घर के बाहर कोई छोटा सा गार्डन जैसा है और दूसरे दिन सुबह में देखना कि वो पेड़ पौधे की हालत क्या होती है, ठीक है। सो एनवायरमेंटल लॉज वगैरह सब आए हैं ताकि वो सारे बिजनेस को अफेक्ट ठीक से ना किया करे, अपना एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कैसे अफेक्ट अपने ग्रोथ को करता है। सो आफ्टर दिस, इफ़ आई टॉक अबाउट द वेस्ट मटीरियल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी कैन टॉक अबाउट द एमिशंस। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, वो ज़्यादातर ये काम करता है, राइट। Process often generate the air or water emissions, which includes particles, chemical field smoke, ash particles and chemicals seep into the groundwater through the runoff. Waste materials, business that manufacture the products create at the some point the manufacturing process create the manufacturing waste. Environmental laws and good environmental citizenship prohibit the indiscriminate dumping of the manufacturing byproduct. So business must decide how best to dispense with it. पता है कि भाई ये बिजनेस है वो अफेक्ट करता है, कम से कम अफेक्ट करे ऐसे किस हिसाब से वो प्रोडक्शंस किया जाए, किस हिसाब से वो मैन्युफैक्चर किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूज द रॉ मटेरियल्स, पुट टुगेदर देयर गुड्स। Christmas tree is the best example for this. Seller buy from the growers who harvest and replant in order to keep the depleting entire forest of naturally occurring pine trees. Right? So this is what here we saw the environmental problems affecting the growth of business, और उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सो किस हिसाब से वो अफेक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड द वेस्ट मटीरियल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रॉ मटीरियल, एमिशन कंट्रोल्स। कैसे कंट्रोल किया जाएगा? बाय प्रोवाइडिंग सम एनवायरमेंटल लॉ, बाय changing the equipment and the procedure to meet imposed standard which cost your business money. So finally here we had completed with the block 1 unit 3, that is the problems of growth. Okay, so introduction of business environment has been completed with the unit 3 of problems of economic growth. Sorry, not economic growth, it's a problems of growth. कैसे कौन कौन से टॉपिक्स बिजनेस को असर करते हैं। तो पहला था अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आया poverty, फिर आया social injustice, we had the regional imbalance, we also had the inflation, and the last we had the environmental problems, how affect your business enterprise. So finally here we ended with the block 1. In the next sessions we will be talking about the block 2, unit 1 and the unit 2. Thank you very much.